Good morning friends. Today we are going to discuss function question. These are the question of JEE Mains 2026 session 1. So let us discuss the question first. If the domain of the function is given in the form of closed alpha beta, then we have to find alpha plus 2 beta. So this is the question number 1. We have to find that. So first of all we will open the domain of for this cos inverse x. Domain of this for cos inverse x. So the domain of the cos inverse lie between this minus 1 to 1. Apply this and this. After let's say first inequality, taking first inequality which is greater than minus 1, this brings to left hand side, so plus 1, taking the LCM. After taking LCM you will get this result. And now since this is fx in fx by gx form, now whenever the function is fx by gx form, then we will take by inequality rule, we will take fx dot gx greater than 0 and g of x नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं. आफ्टर अप्लाइंग दिस कंडीशन वी विल गेट दिस इज द डोमेन. सो this will break in form of x minus 6, 3x minus 11 greater than 0 and x not equals to 11 by 3. So by getting Webby curve method we will get the domain of which x belongs to minus infinity to 11 by 3 and 6 to infinity. In the same way we will take for positive 1. After taking positive 1 to LHS, this will take LCM, and after doing the further calculation apply fx by gx inequality form. So this will become fx dot gx and g of x not equals to 0. सिंस उसके बाद क्या करते हैं, चूँकि ये माइनस 3x है तो माइनस कॉमन आउट करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस, सो इनइक्वालिटी विल बिकम चेंज and x not equals to 11 by 3. By applying Webby curve method we will get the required condition. सो ये आपका हो गया x बिलोंग्स टू दिस डोमेन. सिंस अब यहाँ से जो इनइक्वालिटी अलग अलग हम लोगों ने ब्रेक किए थे, तो ये एंड का सिंबल चलता है, इंटरसेक्शन. तो ये इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू डोमेन विल बिकम आवर. हाँ, नाउ अगेन हम लोग देखते हैं, चूँकि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का भी अप्लाई करते हैं. माइनस 1 to 1 लाई बिटवीन माइनस 1 to 1. टेक 1 equality which is greater than minus 1. Find here x value, root of x, and after doing root of x we will get that d is less than 0. D is less than 0 means function always positive, so this will give nothing. Again take which is less than 1. Now less than 1 means after doing more calculation we will get x belongs to 0 to 3 by 2. जब x हमारा 0 to 3 by 2 पे है चाहिए, और इस x का और यहाँ से obtained x का, यहाँ से डोमेन मिला for this function and domain of this function. Take the intersection 1 and 2 we will get the domain common solution, और वो common solution आया 0 to 3 by 2 which is alpha and beta. एक बार इस नोट्स को आप लोग ध्यान से देख लीजिए. इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए कमेंट करके. नाउ चेक करते हैं. पुट ये अल्फ़ा इक्वल टू 0 है, बीटा इक्वल टू 3 by 2, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 0 प्लस 3. ये ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई उतना कॉन्सेप्टुअल नहीं था. बस आप लोगों को डोमेन याद होना चाहिए. क्या कॉस इनवर्स का डोमेन याद होना चाहिए, एंड साइन इनवर्स का. अप्लाइंग द डोमेन यू विल गेट योर फर्दर कंडीशन. नेक्स्ट second number question है, the number of strictly increasing function from the f to the set 1 to 9 such that f of I not equals to I or I equals to 1 to 6. means f of 1 not equal to 1, f of 2 not equal to 2, f of 3 not equal to 3 and so on up to we have to take up to 6, f of 6 not equal to 6. तो केस 1 लेते हैं कि f of 1 not equal to 1. हाँ, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगा, f of 1 को हमको 2 लेना पड़ेगा, तो मैप करवाते हैं f of 1 को 2 पे. ना चूँकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, सिंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो f of 2 क्या होना चाहिए, 3 आएगा ना. f of 2 क्या ले सकता है, 3 ले सकता है.
4 ले सकता है, 5 ले सकता है या 6 ले सकता है। ऐसे करके वी हैव टोटल हाउ मेनी चॉइस, 4 to 7 चॉइस। हाँ, बट इन LHS साइड हम लोगों को टोटल 5 इंडिपेंडेंट चॉइस है ना, 5 इंडिपेंडेंट मैपिंग हो सकते हैं। आउट ऑफ 7 वी हैव टू सेलेक्ट एनी 5। हाँ, 7C5 way. In this way we can create the function which is increasing and f of 1 not equal to 1. अगेन हम लोग देखते हैं कि f of 1 अब 3 हो जाए। इस केस में क्या होगा, जब f of 1 3 होगा तो f of 2 के पास टोटल कितने चॉइस हैं, 4 5 6 7 8 9, टोटल 6 चॉइस है। और LHS में टोटल 5 ऐसे है, टोटल 5 है ना। और वी हैव टू मैप द 5 एलिमेंट to the RHS side. So out of 6 we can select any 5 which is 65, and these are the increasing function. Again f of 1 को 4 लेंगे तो total we have how many left choice, 5 choice. So LHS में 5 है, RHS भी 5 है, तो 5C5 choice are the total ways in which f of I not equal to I and f function is increasing. अब केस 2 लेते हैं कि f of 2, चूँकि 1 का काम हो गया ना यहाँ पे, अब लेते हैं f of 2 नॉट इक्वल टू 2। अगर f2 2 के बराबर नहीं है तो f2 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। और क्या ले सकते हैं, f2 3 हो गया, ठीक है। तो ना अब क्या करते हैं कि f of 3 को मैप करने के लिए क्या क्या है ऑप्शन है, 4 5 6 7 8 9, तो टोटल तो ऑप्शन है। लेकिन फंक्शन में एक कंडीशन होता है कि एवरी एलिमेंट इन द डोमेन हैव अ इमेज इन द कोड डोमेन। हाँ, ये होना चाहिए ना, एवरी एलिमेंट मैप होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का तो कोई इमेज है ही नहीं, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। ओके, अब कहते हैं कि नहीं, चलिए ठीक है, f of 2 अगर मान लीजिए कि हम 4 लेते हैं और f of 1 को 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे तो इंक्रीजिंग ही फंक्शन नहीं हुआ ना। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि एज डोमेन इंक्रीजेज f शुड ऑल्सो इंक्रीज, मीन्स f of x plus 1 greater than f of x whenever x plus 1 greater than x ना। मीन्स जैसे एग्जांपल लेते हैं कि देखिए 2 बड़ा है 1 से, तो f of 2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो देखिए f of 2 तो 4 है, बट यहाँ पे f of 2 4 है, लेकिन f of 1 कितना है भाई साहब, 5 है। तो ये तो सही है। आप कहिए कि 2 तो बड़ा है 1 से, लेकिन f of 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा हो जा रहा है ना f of 1 से। f of 2 यहाँ पे 4 है, f of 1 5 है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही नहीं हुआ। हाँ, सो नॉट अ इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इन दिस वे वी कांट क्रिएट एनी मोर फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग। हाँ, सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, 21 6C5 is 6 एंड प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपका हो गया 21 6 + 1 28। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि f(x) आपका डिफाइन किया गया है इस तरीके से। अब हमको फाइंड करना है f'5। तो पहले हम पुट कर देते हैं f'5 क्या होगा मेरा। तो f'5 मेरा ये आता है 75 + 10 f'1 + 2 टाइम्स f'22। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं, चूँकि ये मेरा f(x) है तो f' पहले क्या आएगा, इस टाइप से आएगा। आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड 3x² 2x f'। चूँकि अच्छा f' का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि f'1 इज ए कांस्टेंट। हाँ, इट ट्रीट्स लाइक अ कांस्टेंट। f" इज आल्सो अ कांस्टेंट, here x is only variable now, so we will differentiate with respect to x. Now again differentiate with respect to f', तो ये बन जाएगा 3/6x + 2f'1। अब हम लोग को वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पे, f'1 और f'2। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ f'(x) की जगह 2, तो ये बन जाएगा 12 + 2f'1। ठीक है ना। अगर इस फंक्शन में f'1 पुट कर दूँ x की जगह 1, तो ये मेरा ये इक्वेशन 1 आएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर देखते हैं कि 2 को 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, 2 को 1 में पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा f'1 ये आया। आफ्टर डूइंग द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट f'1 एज -27/5। अब f'1 आ गया मेरा, तो f'1 को मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ f'2 में, सेकेंड इक्वेशन में, तो f'2 भी आ जाएगा।
अब मुझे f'1 पता है, f'2 पता है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो f'5 पता चल जाएगा। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सभी बंदे ने अटेम्प्ट किया होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से। तब हमको फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अगेन हम लोग साइन इनवर्स का डोमेन खोलते हैं -1 to 1 में, और पता होना चाहिए क्या, एल का डोमेन खोलते हैं। एल का जो भी होता है याद हो ना, एल ए एक्स, तो बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एल का कंडीशन है, तो अप्लाई करते हैं। हाँ चलिए, तो 10 - x ग्रेटर देन 0, 10 - x नॉट इक्वल टू 1, एंड x नॉट इक्वल टू, आफ्टर डूइंग द सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट x नॉट इक्वल टू 9। चूँकि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देख रखा है कि साइन इनवर्स का डोमेन में ये जो एक पहले LHS लेते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 1, आफ्टर डूइंग द सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट fx/gx फॉर्म। fx/gx को इनइक्वालिटी हटाएंगे तो fx.gx आ जाएगा, fx.gx वेयर gx नॉट इक्वल टू 0। अगेन ये हमारा x का डोमेन आएगा। अगेन एक बार x <1 पे सॉल्व करते हैं, और ये हमको रिक्वायर्ड कंडीशन आता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन रीजन लेंगे तो ये आएगा। अगर जो भी कॉमन रीजन आया x - 10, x <10, इससे एक बार इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी वी विल गेट x बिलोंग टू -8 टू -infinity to -8 यूनियन 2/3 टू इन्फिनिटी, ये है ना हमारा x, और ये कह रहा है कि x 10 से छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो ये मेरा आएगा -infinity to -8, 2/3 to 10, लेकिन ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 9, तो -9। तो यही तो हुआ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये हमको सॉल्व करने पे आया 35/3। अब वो कह रहा है 6 टाइम मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 6 वी विल गेट 70 एज आंसर। ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो कुछ हार्ड नहीं था, बस साइन इनवर्स का कंडीशन याद होना चाहिए, डोमेन कहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस प्लस साइन इनवर्स दिस, वेयर एवर दिस प्लस कम ना, दिस मीन्स वी हैव टू टेक फर्स्ट 5 फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, domain will satisfy this function, then I have to find domain will satisfy this function and take the intersection between these two domain। तो चलिए अप्लाई करते हैं। लॉग का कंडीशन होता है कि लॉग हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और अगेन फिर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर इंटरनल इज ग्रेटर देन 0। नाउ अब क्या देखते हैं कि यहाँ से जो आता है हमारा x आफ्टर डूइंग द सिंप्लीफिकेशन, चूँकि ये ग्रेटर देन 0 है तो 5 पावर 0 हो जाएगा। इफ़ आई रिमूव लॉग टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 5 पावर 0 विच इज़ 1, एंड अगेन माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड, इनइक्वालिटी विल चेंज, और इस 7 को इस तरफ भेजेंगे तो बन जाएगा 6, फिर 2 पावर एंटी लॉग टेकिंग 2 पावर, तो ये बन जाएगा 2 पावर 6 विच इज़ 64, और ये 64 को इस तरफ लेके आए तो -64 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये मेरा डोमेन आएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन हुआ x बिलोंग टू 3 to 7। नाउ अगेन सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी वी विल गेट नो सॉल्यूशन बिकॉज हेयर d इज लेस देन 0 ना, d always lie above the d always lie above the x axis, so no intersection। तो कॉमन रीजन एक तो 3, 7 आया। आफ्टर डूइंग द सिंप्लीफिकेशन अगेन अप्लाइंग द साइन इनवर्स कंडीशन वी विल गेट द रीजन एज -5 to 6, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, और इन दोनों का अब इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा आपका 3 to ओपन 3 to क्लोज 6, तो ये मेरा अल्फ़ा हुआ, ये मेरा बीटा हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 9। अगेन दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, नॉट वेरी ट्रिकी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया हुआ है फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि x² - x + 3 - 3, ठीक है। ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है, और इसमें फाइंड आउट करना है कि फॉर विच डोमेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये चूँकि x प्लस इंटीजर है ना, तो इंटीजर ऑलवेज आउट हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस सिक्स ओके, ये मेरा है। अब इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद पता चला बाई वेविकर मेथड x ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 से बड़ा है तो प्लस, बिटवीन 2 and 3 नेगेटिव, एंड बिटवीन लेस देन -2 पॉजिटिव। तो अप्लाई करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -2 हो जाए, कब -2 होगा, वेन एवर एक्स लाई बिटवीन क्लोज -2 टू ओपन -1, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा -2 हो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाए तो कब 3 होगा भाई, जब एक्स मेरा लाई करेगा ओपन 3 टू क्लोज 4, तब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। इन दोनों केस में मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का यूनियन करने पे एफ एक्स मेरा 0 देता है, ठीक है। अब मुझे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, हाँ। और एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 नहीं होना चाहिए और -2 नहीं होना चाहिए, और 3 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से छोटा कब होगा, जब -∞ टू -2 हो जाए ना, हाँ। -2 पे क्लोज नहीं होना चाहिए, -2 से अगर देखिए यहाँ पे हम कोई पॉइंट लें -2.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3, ओके। सो यही कह रहा है कि -∞ टू -2 वेयर -2 इज ओपन, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, -2 से छोटा होगा। वेन एवर अब हमको चाहिए 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा अगर हम 3.5 ले लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 का क्या होता है, 3। तो इसका मतलब बिटवीन 3 to 4 वी कान टेक, हाँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ना होना चाहिए क्लोज 4 टू इन्फिनिटी। तो फॉर दिस x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन क्लोज 4 टू इन्फिनिटी, एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इन द सेम केस वी नीड टू फाइंड दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 0, सॉरी एफ एक्स लेस देन 0। तो उस केस में मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 नहीं होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए भाई साहब, स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी केस को कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो ये मेरा रिजल्ट है, x बिलोंग्स टू -1 to 3। फॉर दिस इंटरवल एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग, एंड फॉर दिस इंटरवल एक्स इज इंक्रीज, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। एक बार ध्यान से सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट बॉक्स। नाउ 7 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एफ एंड जी सेटिस्फाई करता है दिस फंक्शन इनइक्वालिटी, ये फंक्शनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, वेयर एफ ऑफ 1 7 है एंड जी ऑफ एक्स प्लस वाई जी एक्स वाई है, जी ऑफ 1 1 है, ठीक है। और ये गिवन है कि समेसन एफ एक्स बाई जी एक्स क्या है, 19,19607, देन वी हैव टू फाइंड द एन। तो जब भी ये फंक्शन इनइक्वालिटी है तो ये लोग हम लोग जानते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स डॉट एफ वाई है, मीन्स कि अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स लेते हैं तो इसमें ए पावर एक्स प्लस वाई अगर पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स डॉट ए पावर वाई, मीन्स एफ ऑफ यही है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल इनइक्वालिटी का, तो यहाँ से हम मेरा फंक्शन पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स है ना। ये गिवन है कि एफ ऑफ 1 7 है, तो एफ ऑफ 1 7 पुट करते हैं तो ए इक्वल टू आता है 7, मीन्स एफ एक्स इज नथिंग बट 7 पावर एक्स। ना अब पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जी ऑफ एक्स प्लस वाई जी एक्स वाई है, देन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी एफ 2 इक्वल टू जी एफ 1, जी एफ 1 इज नथिंग बट 1। अगेन अप्लाई कर दीजिए 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 जी एफ 2 1 जी। अब इसमें अप्लाई करिए 2 + 2 सॉरी 3 + 1, तो जी ऑफ 3 + 1 3.1 जी ऑफ 3 इज 1, मीन्स ऐसे करते करते मेरा क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एफ एक्स है 7 पावर एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है, तो जी एक्स इज नथिंग बट 1, तो 7 पावर एक्स बाई 1 मीन्स 7 पावर एक्स। ध्यान से देखिए ये है हमारा जी पी, इन विच कॉमन रेशियो इज 7, तो अप्लाई जी पी फॉर्मूला ए पावर ए इंटू आर पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आर -1, यही है ना। ये यहाँ पे कॉमन रेशियो 7 है, और फर्स्ट टर्म इज 7, तो 7 × 7 पावर n -1 डिवाइडेड बाई 7 - 1 विच इज 6। अब आफ्टर डूइंग सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 7 पावर n इज इक्वल टू 16807 विच इज n इक्वल टू 5, एट n इक्वल टू 5 दिस रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 8 पे वी नीड टू फाइंड द
Let the domain of the function is this log f7 be the interval fn and let the hyperbola have its centricity this, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी है लाइक हम लोगों ने जैसे यहाँ पे लॉग का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये log 3 log 7 सेम एज इट इज़ टू को भी पेस्ट, यहाँ पे भी लॉग है log 3 log 5 log 7। एक बार खुद से आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई इसमें ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विच इज m/n और इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दे रखा है n/n और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दे रखा है m/n। तो ये जो m है, ये जो n है, ये आता है मेरा 4,5, ठीक है। तो ये इसेंट्रिसिटी है n/3, n की जगह 5 है तो 5/3। अब हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या आएगा 1 + b² विच इज 25/9, ठीक है। ये गिवन है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5/3 मीन्स 5 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर तो 25/9। तो यहाँ से b² ये आता है मेरा आफ्टर सॉल्विंग। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है 8m/3, m का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो ये 4 पुट कर दिए तो ये आ गया b² इज 16/3। इन दोनों का सॉल्यूशन करके पता करते हैं कि a = 3 आता है, b = 4, सो b² - a² इज नथिंग बट ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है जो कि थोड़ा सा मतलब मीडियम ट्रिकी है, उसमें भी ज़्यादा नहीं है। तो इसमें कहता है कि लेट अल्फा बीटा विद रिस्पेक्टिवली विद द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, वेयर f of theta is nothing but f of theta defined by sin 4 7π/2 minus theta, sin 4 11π theta and sin 6 3π/2 sin 6 9π minus theta। तो हम लोग को पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। एंड साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना भाई साहब कॉस थीटा में, हाँ फंक्शन ही चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो वही अप्लाई करते हैं कि साइन ऑफ 7π/2 माइनस थीटा ये क्या होगा कॉस थीटा, चूँकि 4 है तो 4, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए हमको, एक बात और बताइए, चूँकि एक 7π/2 माइनस थीटा है ना, π/2 3π प्लस π/2 ये क्या आ जाएगा 7π/2 ना, मीन्स ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ 7π/2 माइनस थीटा किस में है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना भाई साहब, लेकिन पावर चूँकि इवन है, सिंस पावर इज इवन तो नेगेटिव से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगेन सेम 11π/θ, तो ये हो गया आपका 10π प्लस पाई होता है ना, प्लस पाई, ये भी आई थिंक थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बट चूँकि पावर इज इवन सो डज नॉट अफेक्ट। हाँ सेम फॉर दिस, इट विल चेंज इन कॉस, इट विल रिमेन एट इज इन साइन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर में। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसको क्या होगा a² प्लस, देखिए a² प्लस b² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + b होल स्क्वायर -2ab होता है ना, अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा मेरा 1 - 2 डॉट साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर -2 तो -2। अब देखिए ये बन जाएगा मेरा a³ + b³ का क्या फार्मूला होगा, ये बनता है a + b होल क्यूब -3ab इंटू a + b, ठीक है। तो चूँकि यहाँ मेरा है साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये बन जाए a + b, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये बन गया आपका 1, और 3ab तो 3 टाइम्स साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, a + b मीन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आता है 1, ठीक है। आफ्टर डूइंग द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 4 दिस और ये आ जाएगा 2 - साइन स्क्वायर θ/2। अब हम लोग देखते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर 0 हो जाए मेरा, ठीक है, साइन स्क्वायर अगर 0 हो जाए तो ये बन जाएगा मैक्सिमम, और साइन स्क्वायर अगर 1 हो जाए तो ये बन जाएगा मिनिमम, क्योंकि 2 में से कुछ घट रहा है तो कुछ घटेगा तो मिनिमम वैल्यू देगा, 2 में से कुछ भी नहीं घटेगा तो मैक्सिमम देगा। तो ये मेरा है अल्फ़ा, ये मेरा है बीटा, पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगेन क्वेश्चन नंबर 10,
तो 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि ये मेरा डिफाइन है लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 1, जो कि इलिप्स को कट करता है 2 पॉइंट पे। तो 2 पॉइंट पे कट करता है तो ठीक है भाई, अच्छा बात है। ए एंड बी उस पॉइंट का नाम दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। देन द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट, तो कहता है ना कि जो लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है ए बी, इस ए बी के थ्रू इस सेंटर से कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल कह रहा है कि ये एंगल कितना बना रहा है, ठीक है, ए बी लाइन ऑन द सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो पता चलता है ना कि ये जो 0,1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये 0,1 एलिप्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। तब तो और अच्छी की बात है भाई, क्योंकि मुझे एक पॉइंट फाइंड आउट करने को मिल गया, सेकंड पॉइंट अब बस केवल फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्व पुट कर देंगे, ठीक है। तो कर्व पुट कर दिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये आ गया क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक में जब इक्वेशन आ गया तो डी क्या होना चाहिए भाई साहब, डी सॉरी, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, पुट करो, यू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट 0 और -4/3। एक्स इक्वल टू 0 तो एक पहले ही से पता है। अब एक्स इक्वल टू -4/3 पे ये बी कोऑर्डिनेट मिल गया। अब बी कोऑर्डिनेट मिल गया तो पता चलता है कि स्लोप ऑफ वो भी निकालते हैं फ्रॉम सेंटर ओ टू बी, इसका स्लोप निकालते हैं तो पता चलता है कि एम आ गया 1/4। एंड स्लोप ऑफ ओ सी क्या है भाई साहब, ओ सी दिस लाइन ना, ओ सी ये लाइन है, ओ सी ये लाइन है, ओ भी ये लाइन है। तो इन दोनों के बीच का जब एंगल निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं m1 - m2 डिवाइड बाई m1 × m2। तो ये आता है 1/4। थीटा इक्वल टू आता है tan इनवर्स 1/4। और इतना दूर का तो ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, बस यही एंगल ना फाइंड आउट करना है। तो ये है थीटा, तो ये बन गया तुम्हारा π/2 + tan इनवर्स π/4। दीज आर द 10 क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस। एक बार आप लोग देख लीजिए। इतना देर देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं, अभी 7 क्वेश्चन और बाकी हैं। टोटल 17 क्वेश्चन आस्क किए गए थे फ्रॉम फंक्शन 2026 जेईई मेंस, ठीक है। 7 क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कभी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो इसमें बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन का। कहीं इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 8757592100। इस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। थैंक यू दोस्तों।